Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Now let us see some more examples of convolution theorem. Okay, so this is the question which is written on the board. Using convolution theorem, find the inverse Laplace transform of this. The function is 1 upon s plus 2 into s minus 2 whole square. So solution: let fs is equal to 1 by s plus 2 and gs is equal to 1 by s minus 2 का whole square. This implies inverse Laplace of fs is equal to 1 inverse Laplace of 1 by s plus 2 and this is equal to e to the power minus 2 and this is equal to ft. You can say this is ft. Likewise, inverse Laplace of gs means inverse Laplace of 1 by s minus 2 का whole square. And by using shifting property, first shifting property, it is e to the power minus t है, तो it is e to the power 2t. ओके, ठीक है. और फिर L इनवर्स ऑफ 1 बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर. Sorry, this is the L inverse of s square and this is equal to t. So it becomes, ये कहां से आया? By shifting property. So this is e to the power 2t into t. Okay. So first of all we find the inverse Laplace of both of the function fs and gs, and now we are going to find the inverse Laplace of the given functions. So यहाँ हम लिखेंगे using convolution theorem. क्या है convolution theorem? तो inverse Laplace of fs into gs कहने का मतलब इनवर्स Laplace ऑफ 1 by s plus 2 into s minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ft स्टार gt. एंड व्हाट इज ft स्टार gt? इंटीग्रेशन ओवर 0 to t f t minus u gu d, and this is equal to integration over 0 to t minus u, and this is t minus u, e to the power minus 2 t minus u into gu means e to the power 2u into u into t. In place of t you can write u, so it becomes g because this is g. Okay. Here e to the power minus 2t is the constant term, so we can take out the sign of integration, and integration 0 to t minus plus 2u means e to the power 4u, ठीक है, into u d. Now we have to use partial fraction. So this is second function and this is first function. So it will equal to e to the power minus 2t, this is u e to the power 4u divided by 4 minus e to the power 4u divided by 16 और लिमिट 0 से लेकर के t हो जाएगा, क्योंकि 2u into 2u पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. तो दिस इज इक्वल टू e to the power minus
2t, अगर हम t पुट करते हैं तो हो जाएगा t इंटू ई टू दी पावर 4t, 4 इंटू इतना माइनस ई टू दी पावर 40 डिवाइडेड बाय 16 माइनस, और जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा तो 1/16 तो हो जाएगा प्लस 1/16, हो जाएगा प्लस 1/16। ठीक है, इतना आया आपका। इसको क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहां हो जाएगा 4t माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर 2t प्लस ई टू दी पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई, ऐसे दोनों का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आई होप दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स, यू कैन सी। Hello friends, let us see another example. We have to find the inverse Laplace of the given function s upon s square plus a square whole square by using convolution theorem. Okay, so let fs is equal to s upon s square plus a square and gs is equal to 1 upon s square plus a square. First of all, we have to find the inverse Laplace of fs and gs. So, inverse Laplace of fs, capital Fs, is equal to, this is cos 80, and inverse Laplace of gs is equal to sin 80 divided by 80. Let this be small gt and this is equal to small f. Clear? Now, using convolution theorem, we get L inverse of fs into gs is equal to ft star gt, and this is equal to integration 0 to t ft into g fu into g t minus u d according to the property of the convolution, means convolution property जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यहां से लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन of fu means cos a into gt minus u means sin a t minus u divided by a is a constant, so we can take out the constant term outside the integration sign, and this is d. Okay, now first of all you have to apply the formula of trigonometry. So this is 1 by 2a and 2 cos au into cos at minus a, and this is 2 cos a into sin a, 2 cos a into sin a. Formula is 1 by 2a integration 0 to t. This is sin a plus b. If you write a plus b, it becomes 80 minus of sin a minus b, तो हो जाएगा 2au minus 80, and this is sin a plus b और minus of sin a minus b. This is twice of cos a into sin a. Since यहाँ लिख सकते हैं 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है
साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी. Okay, now you can integrate this 1 by 2a. This is constant term, so it becomes u into sin at minus minus plus integration of sin is cos, so cos 2au minus at, and the coefficient of u is 2a, so it is here, it is 2a, and the limit is 0 to 2. Clear? So this is equal to 1 by 2a. You can write t, so t into sin at plus you can write t, so this is cos at upon 2a minus, if you write 0, this becomes 0 and this is 0 cos, so this becomes minus cos at by 2a. Okay. थोड़ा कैमरा को नीचे कर देता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े. नाउ यू कैन सी. Here you can see this term and this term are common, and what is positive, other is negative. That's why it is common. That's why it's cancelled out. So final answer is t sin at upon 2a, and this is the inverse Laplace of fs into gs, where fs into gs is this. Okay, so this is the method. You can easily find out the inverse Laplace transform of such types of functions by using the conjugation theorem. Okay, let us see the next example. Hello friends, now you have to find out the inverse Laplace transform of the function s upon s square plus 1 का whole cube. So you can, first of all you have to find the inverse Laplace transform of 1 upon s square plus 1 का whole square. So let fs is equal to 1 by s square plus 1 and gs is equal to 1 by s square plus 1. After taking the inverse Laplace of fs and gs, we will get inverse Laplace of fs means sin t, and inverse Laplace of gs means this is also sin t. Okay, so this one of the sin t is ft and the other sin t is g. Now you can use the convolution theorem. By using convolution theorem, we get क्या मिलेगा? तो देखिए हो जाएगा इनवर्स Laplace ऑफ 1 by s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. कहने का मतलब इनवर्स Laplace ऑफ 1 by s स्क्वायर प्लस 1 into 1 by s स्क्वायर प्लस 1, and this is equal to ft star gt, and this is equal to integration over 0 to t. This is sin u into sin t minus u d. Okay, fu into g t minus u. So this is equal to 1 by 2 integration 0 to t 2 sin u into sin t minus u d. Now you can use the formula of trigonometry, means conversion. If it is in product, then you can change into a summation form. So this is equal to 1 by 2 0 to t 2 sin into sin b, तो cos a minus b, तो cos a minus b, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, into cos a minus b into minus of cos a plus b. जब इसको जोड़ेंगे, सॉरी पहले cos a minus b ना होगा, a minus b हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2u minus 2 और फिर माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा d, तो सिंपली cos 2. ठीक है, और ये हो गया. यहाँ तक तो आप देख सकते कौन सा फॉर्मूला लगा? 2 sin a into sin b, तो हो जाता है cos
a माइनस बी, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, और माइनस सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा। चलो अब इसको इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा हाफ ऑफ साइन 2u माइनस टी, u का कोएफिशिएंट कितना हो गया 2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस cos t तो कांस्टेंट है तो cos t इंटू यू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से लेकर के t तक, क्योंकि आपका u का फंक्शन है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, जब हम t पुट करते हैं तो यहाँ हो जाता है sin t अपॉन 2 माइनस टी इंटू कॉस टी, और जब हम 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन टी, तो हो जाएगा माइनस साइन टी अपॉन 2, और 0 पर ये हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हो जाएगा साइन टी माइनस टी कॉस टी। ये आपका आंसर आ गया किसका, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का। यहां तक आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने देखा क्या कि आपका इनवर्स लैप्लास आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था ओरिजिनल क्वेश्चन वो 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है। क्यूब निकालने से पहले आपको स्क्वायर निकालना जरूरत है, ठीक है। तो जब स्क्वायर आपको निकल गया तब हम फिर क्या करेंगे, अगेन यूज करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरी का यूज करते हुए फिर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप क्या करेंगे, आप जो है इसके आगे का कहानी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, अब हम दोबारा जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमको क्या करना है, इनवर्स लैप्लास निकालना है किसका, 8 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर कर सकते हो, तो ये कांस्टेंट आपका बाहर हो गया 8 इंटू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम इस फॉर्मेट में समझा सकते हैं। 8 कांस्टेंट हो गया और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक आपका एच टी हो गया, एक एच टी ले लो और स्टार, और दूसरे के लिए आप क्या ले लो, जीटी ले लो, क्योंकि जीटी और एफटी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिस इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से t, यहां पर हो जाएगा एच यू और ये हो जाएगा जी टी माइनस यू, एंड दिस इज डी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट है, 1/0 टू t इंटीग्रेशन हो जाएगा, एच यू मतलब एच टी आपका इतना है, तो जहां जहां t है वहां भी यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन यू माइनस यू इंटू कॉस यू और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 बाहर हो गया, इंटू जी टी माइनस यू मतलब हो जाएगा साइन टी माइनस, और ये हो जाएगा डी। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो और ये जो 4 है इसमें आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो 0 से लेकर के t 2 साइन u इंटू साइन t माइनस, ये हो जाएगा dt du अलग अलग कर दीजिए, फिर माइनस यहाँ देखो 4 है तो हो जाएगा 2, फिर अंदर में 2, u कांस्टेंट है तो u बाहर कर दो, u2 तो u वेरिएबल है तो u इंटू 2, और ये हो जाएगा cos u, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा sin t माइनस u, और ये हो जाएगा मतलब जो आपका क्वेश्चन था वो आपका 2 पार्ट में ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कंप्लीटली इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सॉरी डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो डेफिनिट की वे से इसको बनाइए और आपका क्वेश्चन आराम से बन जाए। तो लास्ट तक इधर आपको इसको मिटाना पड़ेगा, तभी तो हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद हम इसको मिटा के फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपका कैलकुलेशन था
तो हमको अब इसका करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 बाहर हो गया, बाकी कैलकुलेशन प्रॉपर्टी आप पता ही है। एच टी हम लोग निकाले हुए थे, तो एच टी की जगह में हो गया यहाँ एच यू और यहाँ जी टी माइनस यू डी यू, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के, ठीक है। तो एच यू कितना हो जाएगा, तो साइन यू माइनस यू कॉस यू, जो कि हम लोग निकाले हुए हैं, और साइन जी टी जो है वो साइन टी था, तो जी टी माइनस यू कितना होगा, साइन टी माइनस यू हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस टर्म से अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इससे, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 में से 2 यहाँ मैनेज हो गया, बाकी 2 बाहर रहेगा। यहाँ भी देखो 2 एक अंदर है, एक 2 बाहर है, तो 2 अंदर मैनेज इसलिए क्योंकि हमको फॉर्मूला लगाना है। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a into sin b, तो हो जाएगा cos a minus b माइनस ऑफ cos a plus b, ठीक है। तो इतना है आपका। फिर माइनस इसका देखो u तो कांस्टेंट है, यहाँ पर फिर cos a into sin b, तो हो जाएगा sin a plus b माइनस sin a minus b, तो ये आ गया। फिर यहाँ दो अलग अलग इंटीग्रल हो जाएगा, इस इंटीग्रल को अलग कर दिए और इस पार्ट में बाई पार्ट, यहाँ बाई पार्ट लगेगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। और इधर जो बाई पार्ट, इधर जो आपका था cos का इंटीग्रेशन sin हो जाता है, तो sin 2u माइनस 2, क्योंकि आप u के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो u का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस ये तो cos t कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट बाहर du का u हो जाएगा, और लिमिट कहां से आती है, 0 से t, देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखो ये sin t कांस्टेंट है, बाहर हो गया u का u स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहां से आती है, 0 से 2 और माइनस 2, तो फाइन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2, और फिर जो है यहाँ पे u इनटू दिस, मतलब ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन बाई पार्ट, तो बाई पार्ट से आप कैलकुलेट कितना है, ठीक है। तो जब हम पूरे को कैलकुलेशन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो फाइनली आंसर मेरा आ जाता है 3 माइनस t का स्क्वायर sin t माइनस 3t cos t। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। मतलब क्यूब करना है तो पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अब फिर जाके आपको एक बार फिर से मतलब दोबारा इसमें मतलब दो बार कैलकुलेशन प्रॉपर्टी का, कैलकुलेशन थ्योरम का यूज करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में डबल मतलब 2 बार आपको अप्लाई करना होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। Hello friends, let us see another example. Actually we have to find the inverse Laplace transform of the given function s square upon s to the power 4 minus a to the power 4, ठीक है, with the help of the conversion theorem. So first of all we have to write fs and gs and then go to the way we can calculate. So let us see solution. Let fs is equal to s upon s square plus a square and gs is equal to s upon s square minus a square. If we multiply fs and gs, we will get the given function. So here inverse Laplace of fs is equal to, this is cos 80, and inverse Laplace of this, inverse Laplace of gs is equal to hyperbolic cosine 80, ठीक है। one is cos 80 and other is hyperbolic cosine of 80. Okay, so this is equal to gt and this is equal to, now we have to use the convolution term. Now we have to use the convolution theorem. So this is L inverse of means s square by s to the power 4 minus a to the power 4, and this is equal to L inverse of fs into gs, and this is equal to ft star gt, and this is equal to integration 0 to t f t minus u into gu d. Okay, so this is equal to integration 0 to t, here t minus u means
cos t minus u, a cosine of a t minus u, and gu means cos hyperbolic cosine of au, and this is d. सो आप यहां तक तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहां तक लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक फॉर्मूला है, हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एच ए यू इज इक्वल टू ई टू द पावर ए यू माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस ए यू डिवाइडेड बाय टू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए यू। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला इन द गिवन इंटीग्रल। सो दिस इज 0 टू t cos a t minus u, and here we can write e to the power a u plus e to the power minus au and divided by what? So this is 2 and this is d. Okay. Now you can separate them. So this is equal to a 1 minute. You can use the formula cos a minus b. So it is 0 to t cos a t cos a into cos b plus sin a into sin b, sin a t sin a, and this is e to the power a u plus e to the power minus a u divided by this. Okay. So look at this. Here there is a variable u, so you can take out cos a t outside the sign of integration, and this is e to the power a u plus e to the power minus a u divided by 2 into cos a du, plus here sin a t is constant, so we can take out sin a t constant बाहर, ये बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन करना है किसका? तो sin a u into e to the power a u plus e to the power minus a u डिवाइडेड बाय, और ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इंटीग्रेट करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। दिस इज लेफ्ट फॉर यू एंड यू डू द कैलकुलेशंस एंड गेट द फाइनल रिजल्ट। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, बट आपको कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, यहाँ तक के बाद का कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ताकि आप इसको कैलकुलेट कुछ नहीं करना, तो बाय पार्ट लगाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड फंक्शन, और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। यहाँ भी हो गया ये सेकेंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। बाय पार्ट लगाइए, और यहाँ तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ई टू दी पावर ए यू को आप अलग अलग कर सकते थे, एक मिनट।